Hello everyone, welcome to Your English World. I am Tisha Rajput, the director of Your English World. Today I am going to teach you the first poem of 10th SSC board, that is Where the Mind is Without Fear. In this we are going to look about the poet. After that we will be reading the poem and then we will be having line to line explanation of the poem. So let's start. Where the Mind is Without Fear has been written by Rabindranath Tagore ji. He was with us from 1861 to 1941 and he was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. So he became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. तो उन्हें पहला Nobel Prize मिला था. He was the first person who got non-European Nobel Prize in 1913. This can be come in your MCQs. After that, this poem is one of his vastly read and discussed poem. ये इनकी सबसे ज़्यादा famous and सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई poem है. After that, it was originally composed in Bengali. इसे originally Bengali language में compose किया गया था and later on he himself translated it into English. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद ही उनकी poem Bengali to English में translate किए थे. After that, this poem is from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali. और ये जो poem है ये गीतांजलि के लिए जो उन्हें प्राइज मिला था उसी का एक छोटा सा पार्ट है. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. कब थी टैगोर जी? जब इंडिया अंडर रूल्ड था ब्रिटिशर्स के. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. So ये लिखा गया था for the republic में, for the independent of India. ये इंडिया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रूल्ड था उस टाइम पे ये पोम लिखी गई थी. इन ऑल माइटी टू रिक्वेस्ट टू प्रे टू गॉड. ये एक प्रेयर लिखी गई है एक्चुअली कि हमें ब्रिटिश सरकार से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उससे से जल्द आज़ादी मिले. और इस पोम में उन्हें बताया कि एक आज़ाद देश कैसा होगा, यानी कि independent country that will be independent India वो कैसी होगी according to him that he has discussed into this poem. So let's start it. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words can out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father. Let my country awake. Written by Rabindranath Tagore ji. So in this, where the mind is without fear and the head is held high, इसका मतलब क्या है? जहाँ हम लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है, हम फ्रीली रह रहे हैं, जहाँ हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, वेयर समवन इज़ नॉट रूलिंग अस, जैसे कि पहले ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, राइट? तो वो चाह रहे कि हमारा जो माइंड है दैट शुड बी विदाउट फियर, हमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए. सेकेंड, द हेड इज़ हेल्ड हाई. अब हेल्ड हाई यानी कि हम सीना चौड़ा के कब खड़े होते हैं, सर ऊंचा करके कब खड़े होते हैं? व्हेन वी आर सेल्फ respected, when we respect ourselves, और जब हम self confident होते हैं, right? So he is saying कि हर एक कोई इंडियन सिटीजन जो भी है सब लोग कॉन्फिडेंट होने चाहिए. they should be very much confident, they should be self respected people, और उनका सीना और उनका सर ऊंचा होना चाहिए. where the knowledge is free. Now this sentence doesn't mean that knowledge is going free without any money. No, knowledge is free means there is no casteism. जहाँ पे कोई casteism, जातिवाद, religion, black and white जैसे कि
पहले के ज़माने में ज़्यादातर जब ब्रिटिशर्स थे तो दे यूज टू कॉल इंडियंस एज ब्लैक पीपल. तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए. नॉलेज इज़ फ्री फॉर एवरी वन, वेदर इट्स लोअर कास्ट, अपर कास्ट और एनी वन ऑफ अस, राइट. आफ्टर दैट, where the world has not been broken up into fragments. Now what does the fragment means? यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में देश नहीं बैठना चाहिए. Now he is not only saying about the country, he is saying all about the world. यानी कि पूरी दुनिया किसी भी छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटनी चाहिए. Everyone should be one. Everyone should have to come together with togetherness. Okay. By narrow domestic walls. Now walls, it doesn't mean that they have found some walls over there. It means कि कोई कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, रिलीजन डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, कंट्री डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए. डिस्प्यूट्स मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि मन भेद नहीं होने चाहिए. ओके. आफ्टर दैट, there should not be class color in societies and between countries of the world. He is asking about whole of the world, just not about the country. After that, where words came out from depth of truth. Depth of truth means what? आप किसी से बात कर रहे हैं, उनके लिए मुंह पे आप अलग है लेकिन उनके मन में चल रहा है, अरे what the person is he, why is he talking to me, I'm just not at all going to talk with him. and आप उससे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, उससे बात करते टाइम you are smiling but you are not enjoying from your inner soul, right? तो हमारे जो वर्ड्स इन रियलिटी इट्स देयर दैट शुड गेट एक्सप्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. यानी कि ये नहीं कि हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं, हम उसके बारे में सोच रहे कुछ है. इट शुड कम फ्रॉम वेरी ट्रूथ. यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते थे कि जो भी कोई कुछ कहे तो वो सच ही कहे, किसी के अंदर कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं होनी चाहिए. आफ्टर दैट, he is saying where tireless striving stretches its arm towards the perfection. Now tireless striving means what? बिना रुके काम करना, continuous efforts and struggle. यानी कि बिल्कुल अपने आप को स्टॉप नहीं देना है, लेजीनेस नहीं होना है, आलस नहीं दिखाना है. जहाँ पे वो चाहते थे, जहाँ मेरे देश के लोग सभी हमेशा वर्क, दे शुड डू वर्क, दे कीप डूइंग वर्क विदाउट हैविंग टायरलेस स्ट्रीव्स over here. It means they always wanted to keep us working without getting lazy of our work, and we should understand the importance of work. After that, stretches its arm towards the perfection. यानी कि जितना ज़्यादा आप काम करोगे, suppose if you are studying English, if you don't know how to speak in English, but अगर आप बोलते रहेंगे, भले मिस्टेक्स होंगे, but if you would keep trying, so one day will come where you will be perfect speaker. The perfection will come in your language, right? So what does he wanted to say in this one? कि just वो बोलते रहने चाहिए. They should not stop anyways. After that, they should achieve their goals. They should not stop achieving their goals, right? And then he went up with where the clear stream of a reason has not lost its way. Now clear stream reason means what? आप काम कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं? सपोज यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर लर्निंग, अगर आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? just it's a ritual to study, to go into school and you are studying. No, you should know why are you studying, क्यों पढ़ाई कर रहे, ताकि आपको आगे जाके कुछ अच्छा वर्क मिल सके, आप अपना कुछ अच्छा काम कर सके. अदरवाइज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि हम पढ़ते सिर्फ काम के लिए. विदाउट लर्निंग ऑल्सो पीपल आर वर्किंग, आई एग्री, बट for improving our knowledge also we do, right? So we should know why are we studying exactly. Next thing comes, they should not lost its way. यानी कि हमें हमारे पाथ से भूल नहीं जाना है कि हम क्यों वो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं. We should be aware about it. Into the dreary sand of dead habit. Now what is a dead habit is equals to over here is ओल्ड रिचुअल्स, जो पुराने ज़माने के ख्याल होते थे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन कि गर्ल्स विल ओनली सिट एट होम, लेडीज़ घर में ही बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एंड आदमी को ही बाहर जाके कमाना है. बट नाउ इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट, राइट? गर्ल्स आर गोइंग आउटसाइड, विमेन्स आर गोइंग आउटसाइड, दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, एंड मेन्स आर इवन, जैसे पहले कहा जाता था कि आदमी लोग घर के काम नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते. Now the fact is most of the men are making food daily, whether it's a hotel, whether it's house. So
दिस शुड नॉट बी देयर. एक कोई बाउंड्रीज नहीं होने चाहिए. वी शुड नॉट बी बाउंडेड इन समथिंग. वी शुड बी फ्री टू थिंक अबाउट एवरीथिंग. तो ये सारे कस्टम्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, हार्मफुल है, वो हमें फॉलो अप नहीं करने चाहिए. देन इट कम्स अपॉन where the mind is led forward by thee. Now thee means what? You. It's a old English word for you. YOU यानी कि आप. तो ये जो दुनिया है वो हमारा माइंड कैसे चलेगी? हमारे खुद के दिमाग से. हमें खुद से खुद अपनी गाड़ी को आगे लेके जाना है, ना कि कोई हमें आएगा हम पे रूल करेगा एंड देन विल गो. नो, ही इज सेइंग where the mind is led forward by thee, यानी कि आप खुद अपना माइंड आगे लेके जा रहे हैं या हमारे चेंजेस ला रहे हैं, इवोल्यूशंस कर रहे हैं, राइट? into ever widening thought and action, forever broadening one's outlook, यानी कि हमें broad minded सोचना है. we don't have to be limited boundaries, like सिर्फ क्लोज माइंडेड सोच नहीं होनी चाहिए. हमें जितना ज़्यादा ओपन माइंडेड हम हो सकते हैं उतना होना चाहिए. हर चीज़ के बारे में ओपनली हमें सोचना चाहिए. सो दैट्स ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सिटीजन. आफ्टर दैट, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम का यहाँ वो कह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ हमारे पास गुड थॉट्स हो, अच्छे ख्याल हो, अच्छे विचार हो, हम हर चीज़ अच्छी करने की ट्राई करें, कभी किसी से चीट ना करें, खुद को कम ना समझे, हर चीज़ को अचीव करने की अपने आप में हिम्मत रखें, तो वो हो सकता है हमारा हेवन ऑफ फ्रीडम. ना कि ये कि नो नाउ ऑल्सो इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट, बट आई यू इंडिपेंडेंट फॉर दैट? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, अगर आप ये सारी चीज़ फॉलो करें देन यू आर इंडिपेंडेंट. अदरवाइज ये तो सिर्फ एक नाम है कि इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट, आज़ाद देश. नो, you have to be Azad Desh. If you want to be Azad Desh, first of all you have to make yourself free to attempt everything. After that it comes upon my father, let my country awake. My father, it means he is praying to Almighty. Almighty मतलब सारे भगवान, गॉड को वो प्रे कर रहे हैं कि मेरे देश के नागरिक जल्द से जल्द जागे और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी पीसफुल पोम बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी. ये सच में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. तो हमें ऐसी पोम्स सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं, लेकिन रियलिटी में भी सोच कर समझ कर फिर उसे पढ़ना चाहिए. एंड इवन येस, जस्ट नॉट पढ़ना चाहिए बट इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए. इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट इट, सो देयर इज नो यूज ऑफ दैट, राइट? अदरवाइज इट विल बी जस्ट यू आर मगिंग अप, एंड लाइक मगिंग अप मतलब सिर्फ रट्टा मार रहे हो, पेपर में जाके लिख रहे हो, स्कोर कर रहे हो. नो, इट शुड बी रियलिस्टिक. अगेन आई सेड, नॉलेज बढ़ाना है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप आपको समझ में आया होगा. इवन इफ यू गेट एनी क्वेरीज, सो लेट मी नो. थैंक यू. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड.